Hi everyone. So today we are again live. So today we are live with one of our client, and he must be joining in 1 or 2 minutes. So Nikhil is there. So first I'll let me introduce him. So he's a client from past 1 year, and he has reduced a lot of weight. So he'll be second, then we'll start. So any questions, you can ask on the chat here. Hi Nikhil. Hi Preeti, how are you? Fine, आप बताओ कैसे हो? All well. Thank you very All much. right. So I was just introducing कि Nikhil is our client who's Okay. there with us from past 1 year. I think so July, August we started? Yeah. Yeah, July, हमने August. we started in July. July. Yeah, previous Yes. July we started. And then we took a break in January, I think so. So we took a break somewhere around November mid. Okay. November mid was when we took a break, and then the break was somewhere around for 2 months. Okay. And So January also, I think so we couldn't do the January, diet, I think so. हाँ, right. पूरा नहीं कर पाए थे, right. हाँ वही थोड़ा सा मतलब बीच में ब्रेक करके हमने करी है डाइट, बट इट वाज गुड एक्सपीरियंस. सो आवर ऑडियंस आल्सो वांटेड टू नो कि जब आपने स्टार्ट किया तो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट कि आपको करना है. पहले आप कहाँ पे कुछ होता है ना कि कुछ एक्सपेरिमेंट करा हुआ था या स्टार्टिंग से आए, तो व्हाट वाज नहीं, लाइक दैट? पहले मैंने एक और जगह पे I won't name anyone, so I mean I took it from someone else as well. So at that time बहुत गंदा सा खिलाते थे, तो वो इसलिए थोड़ी apprehension थी कि करूँ कि नहीं करूँ. I got to know about you from a friend, which I told you. So I saw commendable results with him. Yes. And then that's what I did. So I started with you. And बस तो फिर यही था कि अब करना है. Now I have to reduce a lot of weight. I mean, and since I had time also. So वो जो लॉकडाउन वाला पीरियड था कि जिसमें लोग पूरा तो खाया, तो that's what I also did कि खूब अच्छे से खाया. And 2-4 months के बाद ही आपको समझ में आ गया था कि now yes, after 4 months फिर समझ में आ गया कि नहीं, अब करना है, कम करना है. Then I reduced. I came to you, and then I started my journey of losing weight. Yeah. So how much we lost in one go? मतलब उस टाइम पे हमने कितना किया था एक बार में? उस टाइम पे I think one go हमने 20 किलो के आसपास तो उस टाइम कर लिया था. 20 kg. And वो मेरे ख्याल से स्मूथली हो भी गया था. स्टार्टिंग में इट इज ऑलवेज स्मूथली व्हेन इट इज डन विद द डेडिकेशन. एंड सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट ये है कि द पर्सन बिहाइंड यू, लाइक योर वाइफ, इज द बेस्ट वन हु पुश्ड यू टू डू दिस. एंड she used to make the meals, and एक होता है ना, एक फैक्टर चाहिए होता है पीछे से मोटिवेशन का. So that was there. Otherwise थोड़ा डिफिकल्ट होता है बॉयज के लिए, जेंट्स के लिए. नहीं, my wife was in fact I mean जो मैं कहूँगा, I would give all the credit to my wife for this, because she was the one who used to cook for me. And she was the one who maintained that proper routine and everything. So she made sure that everything is given to me on time and everything. So she was the biggest factor in that. That is true. Because otherwise ना, what I have seen ना, boys या gents करते हैं, start करते हैं, but after 2 months or 3 months उनकी dedication इतनी खत्म हो जाती है, rather 1 month में ही खत्म हो जाती है. And they start eating everything and they just drop off. तो वो इसीलिए होता है क्योंकि they don't have a person behind them कि जो उनको motivate या तो कर सके, या फिर वो उनकी बात इतना नहीं सुनना चाहते. जो भी है, कुछ ना कुछ फैक्टर होता है. तो इट इज द कंबाइंड. शुरू में था it was there कि वो कुछ कभी कभार बीच में एक
बल्कि एक पीरियड आता भी है कि तो आपका जो वेट इतना कम नहीं होता है, टाइम्स बहुत कम हो जाता है कि मतलब 400 ग्राम 500 ग्राम एक डे में भी हो जाता है, एंड एट टाइम्स 700 ग्राम्स तक भी एक डे में हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ दिन होते हैं कि जब आपका कम होने की बजाय बल्कि बढ़ जाता है। ऐसा बस दैट्स ऑल यू नीड टू डू, एंड बस वो होता है, क्योंकि बीच बीच में प्लेट्यू हमेशा रीच करते हैं, क्योंकि दैट इज अ मेन डाउट जब जो भी जुड़े होते हैं वो ये सोचते हैं कि वेट लॉस हमेशा स्मूथली चलता रहेगा, बट इट इज नॉट हैपनिंग। बॉडी तो है वो कहीं ना कहीं तो यस, स्टेबल भी करेगी उस वेट को, एंड कहीं ना कहीं रेजिस्ट भी राइट करेगी। राइट आपने इतने राइट टाइम राइट। से बढ़ाया है तो उसको कम करने में भी इट विल टेक टाइम ना। हम्म, तो इट इज यस यस। नॉट इजीली डन, इट हैज टू बी लॉट ऑफ हम्म, पेशेंस। और अब ये भी बताओ आपकी एक्सरसाइज का क्या रूटीन रहता था? डिड यू डू एक्सरसाइज एट दैट टाइम? उस टाइम तो आई गेस वी डिडंट एक्सरसाइज डू का तो एनीथिंग। आप भी, एक्सरसाइज का तो है ही कि वो आपने मेरे को बहुत पुश किया एक्सरसाइज के लिए, आई नो। लेकिन ड्यू टू माय वर्किंग आवर्स एंड माय यू नो द लाइन ऑफ, आर यू विद मी, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाता था। लेकिन ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत वॉक कर ली, बट मैं तो आई वुड से यू नो द डाइटिंग एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड ईटिंग हेल्दी एंड ऑल दैट। लोग पहले, लॉट ऑफ पीपल से दैट यू नो 60% क्रेडिट गोज टू डाइट एंड ऑल दैट, बल्कि मैं कहूँगा 85-90% क्रेडिट डाइट का एंड प्रॉपर हेल्दी ईटिंग का है। ये अब समझ में आया, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न नाउ। या दैट इज वेरी ट्रू। एक्चुअली आई हैव सीन क्लाइंट्स जो कहते हैं कि हम जिम तो एक एक साल से कर रहे हैं बट हमारा वेट नहीं हिलता। तो आई एम नॉट अगेंस्ट द जिम, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी एक्सरसाइज, बट आई रिकमेंड, मैं तो बल्कि बोलती थी करो, बट ये खाली सोचना कि हमने जिम ज्वाइन कर लिया एंड वी लूज वेट, तो वो कई बार नहीं होता। आई हैव सीन दैट कि यस। डाइट तो आपको कंट्रोल करनी ही पड़ेगी। डाइट इज द मेजर फैक्टर, देन 20-30% इज योर एक्सरसाइज, क्योंकि वो भी ना मूवमेंट और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। दैट्स व्हाई आई यस यूज्ड टू, यस जब यस। आपका अटकता था वेट तो आई यूज्ड टू टेल यू कि अब थोड़ा सा आप करो, कोशिश करो कि एक्सरसाइज कर लो ताकि वो मूव होना स्टार्ट हो जाए। फिर वो किसी और चीज से मूव हो जाता था तो देन यू लेफ्ट इट एक्सरसाइज, बट मैं हमेशा एक पीछे पड़ी रहती थी कि थोड़ी मूवमेंट जरूर रखो। दैट इज ट्रू। तो राइट। इसलिए हमेशा एक मिथ होती है लोगों के अंदर। और अब जैसे लॉकडाउन का सिनेरियो चल रहा है तो जिम्स आर गेटिंग क्लोज्ड, तो अब लोग फिर आते हैं जो जिम ज्वाइन कर चुके होते हैं, दे आर लीविंग इट, अब फिर से गेन होना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि जब आप जिम करते हो तो मसल मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यस। और जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो फिर वो दोबारा उस पर आने स्टार्ट हो जाती है, तो वो अगेन गेन बैक हो जाता है। वहां पे कम नहीं हुआ बट वो डबल गेन बैक बल्कि हो जाता है। उसमें प्रीति एक और चीज है, यू नो व्हेन यू स्टार्ट यू नो गोइंग टू द जिम, जिम में एक ये भी होता है कि लोग है ना, फिर वो डाइट भी बढ़ जाती है, फिर वो डाइट बढ़ जाती है, फिर वो आई जिम नो। छोड़ने के बाद वो डाइट वापस कम कई बार नहीं होती, और फिर वो ज्यादा, और ऐसा भी होता है कि बहुत से लोगों के साथ ये भी होता है कि वो जिम कर रहे हैं उस टाइम तक तो हेल्दी खाएंगे, और वो छूटते ही एक्सरसाइज तो छूटी छूटी और वो हेल्दी ईटिंग भी छूट जाती है। दैट इज ट्रू। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही है कि हेल्दी ईटिंग वो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जैसे मैं ही जिम छोड़ते हैं वो सोचते हैं चलो थोड़ा तो खा लेते हैं, या जो भी है वो अपना सेम रूटीन पे आ जाते हैं जो आप पहले यस। कर रहे थे, या फिर जिम वाले रूटीन पे ही फॉलो करते हैं। जिम जब खाते हैं, जब जाते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन और सब कुछ चाहिए होता है, तो देन दे डोंट रिड्यूस इट इफ दे आर नॉट गोइंग टू जिम। तो वो सारी प्रॉब्लम करती है। राइट अभी हमारे राइट। पास क्वेश्चंस भी हैं कि प्लीज टेल मी मैम वेट कैसे कम हो। अब वही ये वाला सबसे मेजर क्वेश्चन आई थिंक सो एवरीबडी वांट्स टू नो कि कम कैसे हो। तो एक तो पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यही नहीं कि राइट। आपको डाइट प्लान की ही जरूरत है, बट मेन है पेशेंस। अगर आप उस रूटीन पे चल सकते हो, लाइक अगर आपको, जैसे मैंने भी आपको कभी स्टार्व नहीं कराया, बिकॉज स्टार्विंग इज नॉट एट ऑल अ सोल्यूशन कि हम वेट कम करें। अगर हम खाना ना खा के कम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं ना, कि आप वन डे का फास्ट रख लो और वेट कम यस हो जाएगा। यस यस वो तो यस। फिर फायदा नहीं ना, फिर वो कहीं ना कहीं आपको और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो दैट वी डोंट वांट। तो हमेशा क्या करना चाहिए हमें, मैं वेट लॉस का एक सिंपल फंडा बताना चाहती हूँ कि जैसे हम सुबह में आपको भी वाटर देती हूँ, कभी धनिया वाटर है, कभी जीरा वाटर है, जो भी है वाटर्स वी यूज टू गिव, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म सही सही रहे। और दूसरी बात है, या कहीं ना कहीं वाटर रिटेंशन होती है बॉडी में, कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, एसिडिटी होती है, ये सब भी कंट्रोल रहते हैं। बट अगर हम एक ही वाटर हर दिन लेने स्टार्ट कर दें तो फिर अगेन बॉडी यूज टू हो जाएगी।
अगेन वो फिर आपका रिजल्ट नहीं करेगा. देन वी हैव टू कीप ऑन चेंजिंग द स्पाइसेस, हर्ब्स, ताकि आपकी बॉडी धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करे. देन वी यूज टू, हमेशा हर मील पे मैं भी कोशिश करती हूँ कि 2-2, 3-3 घंटे का गैप करके मैं आपको दूं, ताकि आपका ब्रेकफास्ट भी प्रॉपरली हो, लंच भी हो एंड डिनर भी हो. और इसकी जो बीच की मील्स है, यू कैन हैव योर सैलेड है, देन फ्रूट्स है, सूप है, देन बीटरूट वेजिटेबल जूस जो मैं आपको देती थी. तो ये सारी चीजें वी कैन इजिली इनकॉर्पोरेट इन आवर डाइट. तो मेन चीज होती है कि कैलोरी, जैसे कईयों का मैंने सुना है कि कैलोरी डेफिसिट डाइट आप दो ताकि हमारा वेट कम हो. मेरे पास कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप तो हमें पूरे दिन खिला रहे हो, इतना सारा वेट कैसे कम होगा. मैंने कहा वेट फिर भी कम होगा, क्योंकि आप वो सोच है ना दिमाग के अंदर कि हमें कम खाना है तभी वेट कम होगा. तो दैट इज नॉट ट्रू, बट हमें वाइजली खाना है. बल्कि इनफैक्ट प्रीति मेरे केस में तो ये भी है कि बल्कि मैं अब लगता है मैं अब ज्यादा खाता हूँ कंपैरिजन में, कि पहले जितना खाता था उससे ज्यादा अब खाता हूँ. हाँ, मतलब मेरा मतलब है कि आपको अपने स्टमक को फुल रखना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप नहीं खाओगे, आप कैलोरी डेफिसिट चले जाओगे या आप पेट भर के खाना नहीं खाओगे, तो आपको क्रेविंग ज्यादा बढ़ेंगी. तो आपका अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं दिमाग जाएगा कि चिप्स खा लो, अच्छा घर में मट्ठी पड़ी है वो ले लो, कि कुछ ना कुछ एक मंचिंग होती रहेगी. और वो मंचिंग हम अवॉइड तभी कर सकते हैं जब हम हेल्दी चीजों से अपने स्टमक को फुल रखें. उसमें सबसे अच्छा, जैसे आजकल सर्दियां हैं, तो सर्दियों में सबसे बेस्ट होता है कि वेजिटेबल्स बहुत अच्छी आती हैं, सूप है, दैट यू कैन इजीली हैव. तो ये सब चीजें आपको आराम से फुल भी रखती हैं. और एक ना न्यूट्रिशन लेवल बहुत जरूरी है. जैसे आपको पता ही है कि आगे आगे हमें प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट इन अ बैलेंस्ड वे. तो वो बहुत जरूरी है. और फाइबर की भी जरूरत होती है. या तो इसलिए फैट अगर रिड्यूस करना है और वेट भी, तो इसका भी एक ही आंसर है कि पहले आपको डाइट अच्छे से फॉलो करनी होगी. डाइट में आपको सुबह उठ के सबसे पहले, अगर आपको लगता है कोई पानी नहीं पीना, तो गर्म पानी तो मिनिमम है कि वो तो पीना ही पीना है. आगे भी जैसे आप अभी दोबारा जैसे हमने स्टार्ट किया है, एंड देन वी आर गोइंग ऑन मेंटेनेंस ऑल्सो, तो मैंने तब भी आपको यही बोला था कि एटलीस्ट आप अपना गर्म पानी या कोई भी पानी एक जरूर पीना, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो ना हो. एंड देन ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस आप कुछ भी चूज कर सकते हो. पोहा ले सकते हो, इडली ले सकते हो, सैंडविचेस हैं, चीला है, एनीथिंग, बट यू कैन रोटेट इट. एक ही चीज नहीं खानी रोज, अदरवाइज उससे भी बॉडी आपकी यूज्ड हो जाती है. देन रोटी में आजकल मल्टीग्रेन रोटी, तो आपको पता ही है, आपने पीछे जब मेंटेन किया था तब भी आई थिंक सो मल्टीग्रेन आटा यूज किया था, ताकि वो सारी आपकी सारे जब इस टाइम पे मेंटेनेंस किया था तो उस टाइम पे तो मल्टीग्रेन खाता था मैं. आई यूज्ड टू ईट मल्टीग्रेन, क्योंकि उसमें क्या है कि आपके वीट के साथ और भी सारी चीजें आती है, रागी है, जौ है, बाजरा है, चने का आटा है, सोया है. तो दीज विल गिव यू न्यूट्रिशन. कहीं ना कहीं सबकी क्वालिटीज होती है. तो एटलीस्ट आप जब भी खा रहे हो तो मल्टीग्रेन खा रहे हो, तो एटलीस्ट आपका वेट मेंटेन रहेगा. एंड देन साथ में आपको न्यूट्रिशन भी पूरा मिलेगा. एंड देन दालें हैं, पनीर है, ये सब आप खा सकते हो अगर आप लंच में चाहते हो तो. बट अगर हम डिनर की बात करते हैं तो डिनर शुड बी लाइटेस्ट. वो तो मैंने आपको भी देखा है, जब दिया था दलिया दे दिया, ओट्स दे दिया, सूप और वेजिटेबल सॉटे दे दी. कभी 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 कहा कि सॉल्ट फ्री भी कर लो, जैसे म्यूसली मिल्क है, वो भी Preeti, you continue. I'll just be back in 2 minutes. So there's someone at the door. ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. यू जस्ट ज्वाइन बैक. आई एम जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस. ठीक है. तो वही मैं आपको रूटीन बता रही थी कि किस तरीके से हम वेट भी कम कर सकते हैं और फैट भी. तो फैट का कम करने के लिए अगर आपको करना है, सपोज एक रिजिड पार्ट से करना है आपको, स्टमक या बेली पार्ट से. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस और डीएम आए थे कि हमें फैट अपनी बेली से कम करना है. तो सबसे ज्यादा बेली पे ही फैट बढ़ता है, और बॉडी में नहीं बढ़ेगा. कईयों का वेट कहीं पे भी नहीं होगा, सिर्फ स्टमक पे ही फैट होगा. तो उस केस में खाली डाइट काम नहीं करेगी. देन यू हैव टू डू द एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइजेस मस्ट होती है उसके लिए. उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप अपने कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हो. देन यू कैन हैव जंपिंग जैक वगैरह तो है ही, साथ में आपका लेग रेज हो गया. देन स्टमक में आपका देन ट्रंचेस हो गए, प्लैंक्स हो गए. दीज आर एक्सरसाइजेस विच आर मस्ट, एंड वो भी ऑल्टरनेट डेज पे आप करो. तो एटलीस्ट 3 days या 4 days भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, देन इट विल बेनिफिट यू अ लॉट. और आपका स्टमक का, थाइस का, इन सब का फैट भी तभी निकलेगा जब आप एक्सरसाइजेस साथ में करोगे डाइट के. तो डाइट तो मैंने आपको बता दी, एक सिंपल रूटीन है दैट यू हैव टू ईट एवरीथिंग बट इन मॉडरेशन. बट साथ में आपको अपना कोई भी मील स्किप नहीं करनी. रात को अगर आपको बिल्कुल भूख नहीं है, यू कैन हैव दूध एंड व्हीट फ्लेक्स, दैट इज ऑल्सो ओके. या फिर एक पपाया का आपने बड़ा बाउल खा लिया, बट इट शुड नॉट बी अ प्रैक्टिस कि आप रोज खा रहे हो पपाया. एक दिन खा लिया हफ्ते में, देन नेक्स्ट डे यू हैव टू चेंज इट.
तो कभी आप वेजिटेबल सॉटे खा लो, कभी आप ओट्स खा लो, कभी आप बेसन का चीला खा लो, कभी स्प्राउट्स खा लो। तो देयर शुड बी अ चेंज ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स विच आर अवेलेबल। आप किनुआ खा सकते हो, किनुआ की सैलेड बनती है, किनुआ का दलिया भी होता है। तो इतनी सारी चीजें, इतनी वैरायटी है बाहर, तो आप आराम से खा सकते हो। देयर इज नो दिस थिंग कि आप नहीं खा सकते। तो इसीलिए डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आप अपने आप भी कर सकते हो। अपनी डाइट खुद बनाओ, आप एक पेपर पेन पे लिखो कि आप क्या खा रहे हो। तो आई वाज जस्ट टेलिंग देम कि आप अपनी डाइट भी बनाना चाहो, कभी ट्राई करना चाहते हैं कोई भी, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। तो बस मैंने वही बताया, जो ऑप्शंस बताए उनको आप अलग अलग अपना लिखो और एक हफ्ते तक फॉलो करो। अगर आप एक हफ्ते तक भी फॉलो कर रहे हो ना, वही अगर खुद के अंदर डेडिकेशन है, तो एक हफ्ते में भी आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका रिजल्ट आता है। बट एक मीठा तो है ही, जो एक सबसे बड़ा कल्प्रिट है, जो वेट बढ़ाता है। वो तो मीठा आई थिंक मीठा मैंने बिल्कुल मीन्स बंद कर दिया था। आई हैड स्टॉप। मेरे उस को टाइम पे बहुत आपने पसंद कर है मीठा, लेकिन मीठा फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। हाँ, उस टाइम पे आपने बिल्कुल बंद कर दिया था। बट यही हम्म। है कि धीरे धीरे वो हमें करना ही पड़ता है। डिनर में क्या खाना है, आई जस्ट आंसर्ड। एक मिनट, एक दो क्वेश्चंस और थे। वेट कैसे, आप मुझे डाइट बता दो कि क्या खाना है। तो आई जस्ट टोल्ड कि आप वही वाला करो, अपना वेट एंड फैट रिड्यूस करना है। आप बताओ कैसे करूं। मेरा एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद मैं थोड़ा हेल्दी हो गया हूँ। तो अगर सपोज किसी का एक्सीडेंट भी हो गया है जिसकी वजह से वो बेड रिडन है और वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट डाइट का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। फिर तो आपका डाइट ही आपको कम कर सकती है। फिर उसके बाद ही आप धीरे धीरे स्लिम हो सकते हो, क्योंकि ये है कि वो आपका मैजिक नहीं कर सकता ना कुछ भी। टाइम तो उसमें लगेगा ही लगेगा। बाकी एक और टिप मैं बताना चाहती हूँ। जैसे हम चिया सीड की बात करते हैं या सीड्स की बात करते हैं, तो सीड्स आर वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। इसके अंदर आपका विटामिन ई, ओमेगा 3 सब कुछ होता है। मेलन सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स है, देन चिया सीड्स हैं, ये सारे बहुत अच्छे हैं। तो चिया सीड एंड सब्जा सीड ऑल्सो कैन बी टेकन, बट इन समर्स। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ठंड है, तो इस टाइम पे हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और गर्मियों में जैसे हम सोक करके, मैंने आपको भी दिया था, निखिल को भी दिया था, कि गर्मियों में आप सोक करके आप लेते हो, तो दैट इज रिच इन फाइबर ऑल्सो, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन, सब बहुत अच्छा होता है। बट थोड़ा सा एक्सट्रीम विंटर्स में हम थोड़ा अवॉइड करते हैं 1-2 मंथ्स। उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने जब मेंटेनेंस किया निखिल, तो आप मेंटेन कर पाए थे? कोई प्रॉब्लम आई थी आपको उस टाइम नहीं, पे? मेंटेनेंस में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट मेरा तो मेंटेनेंस के टाइम पे भी थोड़ा कम हुआ था। और ओके। मेंटेनेंस के टाइम में भी आई यूज टू ईट, आई मीन मैंने नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाया था, मैंने छोले भटूरे भी खाए थे, और मतलब नान वान भी एंड ऑल दैट, वो मैंने पूरा अच्छे से खाया, पूरी भी खाई। तो अर्लियर आई यूज टू लिव इन ओल्ड दिल्ली, तो उस टाइम पे मतलब वो तो पूरा शौक है, तो वो सब चीजें हाँ, भी खाई। तो लेकिन व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि जिस दिन खाया उसके एक दिन दो दिन फिर उसको कंट्रोल कर लिया। दैट्स ट्रू। उसके नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट डे उसको कंट्रोल कर लिया, ताकि वो मेंटेन उस तरीके से हो जाए। तो जो बढ़ने लगेगा तो उसको फिर से हम उस पे लगा पड़े। दैट्स व्हाट आई डिड। एंड देन फिर बाकी दिन हेल्दी खा लेता था थोड़ा सा बीच में। वही, तो वही मैं बताना चाहती हूँ अभी उसको भी। जैसे बहुत लोगों के मन में ये डाउट है कि हम वेट तो कम कर लेंगे लेकिन हमारा फिर बाउंस बैक हो जाएगा। तो वो हम्म। आपके ऊपर है कि आप बाउंस बैक करने दोगे तो वो होगा। बट अगर आप उसको थोड़े तरीके से खा लोगे, जैसे अब निखिल ने भी छोले भटूरे भी खाए, सब कुछ खाया, बट अगले दिन उसको पता था कि हाँ, मैं बैलेंस कर सकता हूँ। आई नो दिस कि मेरे अंदर इतना है सेमिना कि मैं अगले दिन बैलेंस करूंगा, तो आई कैन नॉट इंक्रीज दैट वेट, वो वहीं पर रहेगा। तो वो हम्म। चीजें तो हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही लापरवाह हो जाएंगे, एवरीथिंग वी आर ईटिंग, वी आर जस्ट नॉट टेकिंग केयर, कि हमने जो पहले रूटीन करते थे वही उसी पे वापस आ जाएंगे, तो फिर गेन बैक होगा। बट अगर एक और हम्म। चीज से, आपने तो एक्सरसाइज नहीं करी, कई लोग क्या करते हैं मेंटेनेंस में एक्सरसाइज करते हैं। इन द सेंस, वो मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, खाते सब कुछ है, छोले भटूरे वगैरह तो हम्म। वंस अ वीक होता है, बट नॉर्मल खाने में सब कुछ खाएंगे, एवरीथिंग। हम्म। बट दे डू एक्सरसाइज 1 hour एवरी डे। तो उससे क्या होता है, वो मेटाबॉलिज्म फास्ट करके जो आप खा रहे हो ना, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो उससे भी वो राइट। मेंटेन कर सकते हैं। तो मेंटेन के भी दो तरीके हैं। एक होता है कि आप हम्म। अपना वही वाले डाइट पैटर्न फॉलो करो और बीच बीच में खा लो, या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे भी आपका मेंटेन हो सकता है। राइट। बट एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, वाटर का भी, मैं जैसे निखिल को बोलती हूँ और भी अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सर्दियां भी हैं और हमें हैबिट है कि वाटर कम हो जाता है, तो इसलिए मैंने निखिल को भी बोला था कि अब आप ल्यूक वार्म करके चाहे पानी पियो, बट 2 लीटर्स पानी मिनिमम जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सर्दियों में एसिडिटी या गैस्ट्रिक इश्यू या कुछ है प्रॉब्लम,
तो आप जीरा भी बॉईल कर सकते हो, जैसे आई हैव गिवन यू नाउ कि आप जीरा बॉईल करके पानी ले लो ताकि उसको ल्यूकवार्म जीरा करके, ताकि जीरा आपको अजवाइन प्रॉब्लम। डाल के। अजवाइन डिपेंड करता है, जैसे कईयों की बॉडी में पित्त ज्यादा है, हीट ज्यादा है, तो वी कांट गिव देम। बट किसी की नॉर्मल है और सर्दियां ज्यादा चल रही हैं और उनको ठीक लग रहा है, तो हम 1/4 टीस्पून अजवाइन भी डलवा लेते हैं। तो दैट इज अगेन टेस्टी भी होता है, एक तो पानी है, और कम से कम ये एक मोटिव रहता है कि चलो ठीक है, ये वाला पानी बना हुआ है, थर्मस में है, केटल में है, तो वी कैन ड्रिंक इट इजिली, तो इसीलिए वो भी हो जाता है। ठीक है, बाकी तो अब हमने दोबारा स्टार्ट किया है, अब लेट्स होप कि हम कितना कम कर पाते हैं। 5 kg और हमें करना है ताकि अच्छे से हमारा कम होके हम उस टारगेट पे पहुंच जाए जो हमने पहले छोड़ा था। बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट आई वांट टू टेल एवरीवन कि कई बार कई लोग सोचते हैं कि एक साथ ही 30-40 किलो कम कर लेते हैं एंड देन वील गिव अ ब्रेक। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका 20 किलो के बाद बॉडी रुक रही है और आपका वो डिमांड नहीं कर रही वेट लॉस, तो आप उस टाइम पे रुक जाओ, यू मेंटेन दैट वेट एंड देन यू स्टार्ट इट अगेन आफ्टर 4 months 5 months, तो आपका फिर रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बट आप कंटिन्यूस करते रहो, जैसे कहते हैं ना, रबड़ जबरदस्ती आप खींचोगे तो वो टूट जाएगा, वही चीज है भाई कि आप उस टाइम पे उसको थोड़ा सा लूज छोड़ दो एंड देन यू डू इट अगेन। तो वो एक बेस्ट तरीका होता है कि आप उसका, और वैसे भी डाइटिंग आई थिंक सो 6 months तक आपने कर ली एक बार, तो एक बार आपको वैसे भी ब्रेक देनी चाहिए बॉडी को, ब्रेक देना क्योंकि चाहिए। बॉडी ऑलवेज नीड्स टाइम टू हील। तो इसीलिए 1-2 kg तो बढ़ता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो दैट इज अ बफर थिंग कि आपका वो आएगा वापस एंड देन इट गोज बैक, तो इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं सो दैट वी कैन टेक देम, अदरवाइज वील जस्ट एंड द सेशन। मैम क्या पूरा दिन बॉयल वाटर पीना है या सिंपल वाटर? अगर सर्दियों में, वही मैं बोलना चाहती हूँ कि सर्दियों में पीना चाहते हो तो बॉयल करके आप उसको वार्म कर लो और वो पानी पियो, बट गर्मियों में तो आप नॉर्मल पानी पी सकते हो। ये डिपेंड करता है वेदर टू वेदर कि वेदर कैसा है। अगर आपको, क्योंकि कई बार मैं ही जैसे आजकल ठंडा पानी या नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीती हूँ तो ऐसा लगता है अंदर ठंडा हो गया बिल्कुल, तो वो बिल्कुल मन नहीं करता, तो उसको हल्का ल्यूकवार्म पीने से ना अंदर जाके लगता है कि ठीक है, हमने नॉर्मल पानी सही पिया। तो वही है, तो उसके टेम्परेचर के ऊपर है कि आपका कैसा टेम्परेचर है। एक और क्वेश्चन है संदीप अरोड़ा का, मैडम इन विंटर्स आई फील मोर हंग्री एज कंपेयर टू समर्स, इज इट विद एवरीवन? weight I have checked, it is half kg more as compared to summers. So संदीप जी, yes, it happens with everyone, क्योंकि जब आप विंटर्स में होते हो तो आपको खाने का ज्यादा मन करता है, समर्स में हमेशा आपको पीने का मन करेगा कि कुछ ना कुछ लिक्विड ले लो क्योंकि गर्मी लग रही है। लेकिन विंटर्स में आपको गर्मी तो लग नहीं रही, तो आपको वहां पे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए भूख ज्यादा लगती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा कि ऑप्शंस आप कोशिश करो कि वाइजली चूज करो कि बॉइल्ड वेजिटेबल, सैलेड, सूप ये ज्यादा लो, बट ये नहीं कि आपको मीठा बिल्कुल अवॉइड करना है। आप खा सकते हो, जैसे रागी का लड्डू अगर आपने बनवाया है गुड़ और रागी के साथ तो आप वो खा सकते हो। मैंने पीछे अभी स्टोरी पे शेयर किया था गाजर का हलवा, तो अगर आपने गाजर को दूध में उसको वो करा है, पकाया है प्रॉपर, और थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, तो आप 2-3 टीस्पून आप रोज भी खा लोगे तो वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये सब चीजें आप आराम से कर सकते हो जिसमें आपकी हेल्दी चॉइसेस है। जैसे आप डेट्स खा सकते हो, 2 डेट्स मैंने निखिल को भी बोला था और भी सब क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि 2 डेट्स आप खा सकते हो, क्योंकि दे आर रिच इन फाइबर, प्रोटीन एंड साथ में आपका आयरन बहुत होता है इसमें, तो आप रोज ले सकते हो। तो इसीलिए हमें खाना जरूर है, लेकिन ये नहीं करना कि हमें बिल्कुल ही फ्राइड पे आ जाना है, क्योंकि इस टाइम पे सर्दियों में यही होता है कि आपको फ्राइड खाने का ज्यादा मन करता है और वो प्रॉब्लम ज्यादा करता है। क्योंकि सर्दियों में आपने ये सुना होगा ना कि बीपी भी बढ़ जाता है जल्दी, हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि वो हम खाते भी उसी तरीके से, हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल बंद हो जाती है, पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, तो हमारा वेट भी बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए अगर आपको वेट भी कम करना है, और समर्स में कोशिश करना है कि समर्स में वेट ज्यादा कम होता है, विंटर्स में थोड़ा स्लोली होता है, तो थोड़ी पेशेंस विंटर्स में चाहिए होती है, तो दैट इज मच नीडेड। आई थिंक सो वी आर गुड टू गो, एवरीबडीज क्वेश्चन इज कवर्ड। बाकी सब लाइव देख लेंगे, जो भी होंगे यू कैन डीएम अस एंड विल बी हैप्पी टू आंसर आफ्टरवर्ड्स आल्सो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच निखिल फॉर योर टाइम। थैंक यू, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर। थैंक यू, बाय।